Dear students, I welcome you all to my channel. So I have a video for you on a new topic, that is quadrilateral. First of all, we will discuss some points regarding quadrilaterals. What is a quadrilateral? What are the types of the quadrilaterals? तो ये पहले हम इसके बारे में पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देंगे, उसके बाद जो है क्वेश्चंस इस टॉपिक में से लेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल? जैसे कि if there are 4 points A, B, C, D are 4 points in a plane such that no 3 of them are collinear. जैसे कि हम ये 4 पॉइंट्स लेते हैं A, B, C, D are 4 points in a plane, no 3 of them are collinear. अब देखो मैंने ये एक लाइन में डाल दिया है तो ये कोलिनियर हो गए, एक ही लाइन में आगे सारे. अब 3 पॉइंट्स जो है अगर ऐसे हो गए, दीज आर कोलिनियर, सो नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर. तो इसलिए मीन्स दे आर नॉट कोलिनियर एंड द लाइन सेगमेंट्स ए बी, बी सी, सी डी and DA, they do not intersect each other except at their origins, मेरे except their ends. तो इस तरीके से जो एक फिगर बनेगा, the figure formed by such 4 points A, B, C and D, so that figures will be called as the quadrilateral. एक क्वाड्रिलेटरल जो है 4 पॉइंट से बना हुआ एक ऐसा फिगर है एक प्लेन में जिसमें के 4 पॉइंट में से 3 पॉइंट या कोई से भी 3 पॉइंट या दे शुड नॉट बी कोलिनियर एंड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 ऑफ द पॉइंट्स तो दैट शुड नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एक्सेप्ट एट देयर एंड्स. तो ये जो फिगर मैंने बोर्ड पे ड्रॉ किया ये एक क्वाड्रिलेटरल. अब आता है नेक्स्ट रिगार्डिंग देयर साइड्स. साइड्स, एडजेसेंट साइड्स, or the conjunctive sides. So the 2 sides of the quadrilaterals are said to be adjacent or the conjunctive if the 2 sides have a common vertex. For example, side AB and side BC. These are 2 adjacent sides having the common vertex B. This side having the common vertex B. This is a pair of adjacent sides. So another pair BC and CD, CD and DA, so DA and AB. So there are 4 pair of adjacent sides in a quadrilateral. Then comes the opposite sides. The 2 sides of a quadrilateral are opposite if they don't have any common vertex. जैसे कि साइड AB, side AB and side DC. These are opposite, a pair of opposite sides. They have no common vertex. And another pair is BC and DA. So there are 2 pair of opposite sides, the sides which having no common vertex. Now comes the angles. So angle A, angle B, angle C
angle D. These are four angles of a of a quadrilateral. So out of these four angles, so what are the adjacent angles? So angle A and B, angle A and B, angle B and C, angle C and D, angle D and A. These are four pairs of adjacent angles, means the angles which have a common arm, one common arm. अब एंगल ए, जैसे एंगल ए है एंगल बी, तो इसमें एक कॉमन आर्म है ए बी आर्म। ऐसे एंगल बी और एंगल सी में दिस इज अ बी सी इज अ कॉमन आर्म। So adjacent angle are those angles which have one common arm. Next, the opposite angle. Opposite angles, angle A and angle C, whereas angle B and angle D, these are a pair of opposite angles having no common arm. Angle A के opposite angle C, angle B के opposite angle D. These are pair of opposite angle having no common arm. Then comes the diagonal. So AC and BD, these are two diagonals. Are two diagonals of quadrilateral ABCD. ये इसके हो गए डायगोनल्स। अब आता है द फोर एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स का जो सम है वो कितना होता है। सो एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर, सो सम ऑफ फोर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। कि इसमें जो चार एंगल्स होते हैं उन चारों का जो जोड़ होता है वो 360 डिग्री के होता है। दैट इज कॉल्ड द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अब इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, so number one is trapezium. A trapezium is a quadrilateral which has one pair of parallel sides. So ABCD is a quadrilateral and a trapezium in which the side AB and DC are parallel. So a trapezium is a quadrilateral having one pair of parallel sides and the other pair is non-parallel. Second type is a parallelogram. A parallelogram has two pair of opposite parallel sides. अब ये पैरेललोग्राम जैसे मैंने बनाया ABCD is a parallelogram in which AB parallel to DC and BC parallel to DA. So two pair of opposite parallel sides. A quadrilateral with two pair of opposite parallel sides, that is called a parallelogram. अब इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं पैरेललोग्राम की, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे बारी बारी से जब एक पैरेललोग्राम लेंगे कि इसमें जो अपोजिट एंगल होते हैं बराबर होते हैं, दो इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ये और अपोजिट साइड जब बराबर होती हैं पैरेलल होती हैं, वो अपोजिट साइड बराबर होती है। नेक्स्ट टाइप इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, ये रेक्टेंगल है,
A rectangle is a quadrilateral which has all the four angles of 90 degree. Number 2, both diagonals are equal. Number 3, the diagonals bisect each other. Number 4, the opposite sides are equal as well as parallel. So this is a type of the parallelogram. So rectangle is a type of a parallelogram which has opposite sides parallel as well as equal. Each angle equal to 90 degree. Both the diagonals are equal and they are bisector of each other. They bisect each other. Next type is rhombus. Rhombus is a parallelogram, type of parallelogram which has all the four sides equal. Number 1. Number 2, both the diagonals are right bisector of each other. A rhombus has all four sides equal. It's a parallelogram having all the four sides equal. Number 2, both the diagonals are right bisector of each other. Here rhombus. Next is a square. This is a square. A quadrilateral will be called a square if it has all the four sides equal. Number 1, both the diagonals equal. Number 3, each angle equal to 90 degree. All the four angles are equal of 90 degree each. Number 4, the diagonals bisect each other at right angle, means they are right bisector of each other. तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर ये सारी प्रॉपर्टीज़ किसी एक क्वाड्रिलेटरल में मिल रही हैं, सो दैट क्वाड्रिलेटरल विल बी ए स्क्वायर. A square is a type of the parallelogram having all the four sides equal. Number 2, both diagonals equal, each angle of 90 degree, and both the diagonals are right bisector of each other. Next is type of the quadrilateral is a kite. This is a kite. The kite is a quadrilateral having two pair of parallel adjacent sides. जैसे A, B, C, D is a kite. It has a two pair of parallel adjacent sides. So AB side parallel, AB equal, not parallel, it has two pair of equal adjacent sides, not parallel sides, equal sides. So AB equal to BC, whereas AD equal to DC. So this is a pair of adjacent sides. AB and BC are the two adjacent sides. These are equal. Whereas other pair is AD and DC. These are adjacent sides. They are also equal. And the diagonals intersect each other at 90 degree. अब इसके जो डायगोनल्स हैं वो दोनों बराबर नहीं होते, राइट बाइसेक्टर भी नहीं होते, लेकिन वो बराबर होते हैं. एट राइट एंगल जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं. बाइसेक्टर नहीं होते क्योंकि वो डायगोनल जो है छोटे बड़े होते हैं. तो ये कुछ टाइप थी क्वाड्रिलेटरल्स की. तो अब हम इसके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस चैप्टर. द फर्स्ट क्वेश्चन इज
The angles of a quadrilateral are in the ratio of 3:5:9:13. Find all the angles of a quadrilateral. Let it is a quadrilateral. ABCD is quadrilateral. अब गिवन क्या है? द रेशियो ऑफ द एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:9:9. So solution, so angle A is to angle B is to angle C is to angle D बराबर है 3:5:9:13. This is the ratio of all the four angles. So let angle A is equal to 3x, angle B is equal to 5x, angle C 9x, angle D 13x. अब हमें जानते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स, सम ऑफ ऑल द फोर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री. Since angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to 360 degree. So 3x plus 5x plus 9x plus 13x will be equal to 360 degree. Angle sum property of the quadrilateral. तो इनको ऐड करिए तो 3 plus 5 8, 8 plus 5 9, 3 plus 5 8, 8 plus 9 that is 17, 17 plus 13 that is 30. 30x is equal to 360 degree. Value of x is equal to 360 divided by 30, that is 12. Therefore angle A will be 3x, that is 3 into 12, 36 degree. Angle B 5x, so 5 into 12 60 degree. Angle C 9x, so 9 into 12 108 degree. Angle D 13x, so 13 into 12 156 degree. These are the four angles of the quadrilateral. Angle A 36, angle B 60 degree, angle C 108 degree, and angle D 156 degree. So all the four angles we have find out. Next question. The next question is, if the diagonals of a parallelogram are equal, show that it is a rectangle. अब गिवन है ABCD से quadrilateral ABCD, quadrilateral ABCD is a parallelogram in which diagonal AC and diagonal BD are equal. So diagonal AC equal to diagonal BD. प्रूव करना है. टू प्रूव ABCD is a rectangle. Proof. अब रेक्टेंगल में अभी हमने पहले बताया था, अभी थोड़ी देर पहले, कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं. नंबर 2 पैरेलल होती है. नंबर 3 डायगोनल बराबर होते हैं. नंबर 4 ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. अब हमें गिवन में क्या है कि दोनों डायगोनल्स बराबर दे रखे हैं, वो हमें प्रूव नहीं करना. अपोजिट साइड बराबर है क्योंकि वो हमें इसमें दे रखी है, गिवन है पैरेललोग्राम है, दोनों साइड्स पैरेलल हैं. अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो वो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में आ रही है पहले से ही. हमें सिर्फ ये प्रूव करना है कि इसका जो हर एंगल है वो अगर 90 डिग्री प्रूव कर देते हैं तो देन इट बिकम्स अ रेक्टेंगल.
अब हम दो ट्राइंगल्स इसमें लेते हैं, ट्राइंगल ए बी सी एंड ए बी डी। तो ये ट्राइंगल, ये वाली एक ट्राइंगल ये होगी, दूसरी ट्राइंगल ये होगी। सो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी, अब इसमें क्या क्या चीज़ कॉमन है? सो साइड ए बी बराबर है साइड ए बी, कॉमन साइड फॉर बोथ ट्राइंगल्स, सो कॉमन साइड। उसके बाद साइड बी सी इक्वल टू साइड डी ए, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। नंबर 3, साइड ए सी बराबर है साइड बी डी, ये गिवन, क्योंकि ये दोनों डायगोनल्स बराबर हैं। तो इससे क्या होगा कि दोनों जो ट्राइंगल सी दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए बी डी, both the triangles are congruent on the basis of SS criteria of congruency। अब जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो बराबर होंगे। सो एंगल ए is equal to angle B. So angle B of triangle ABC and angle A of triangle ABD. So angle B is equal to angle A, CP, CPCT, the corresponding part of the congruent triangle। लेकिन हमें ये पता है कि एंगल A और B का जो जोड़ है वो 180 डिग्री है। Why? Because but angle A plus angle B is equal to 180 डिग्री। Why? कि देखिए ये जो दो साइड से BC और DA दे आर पैरेलल और उनको इंटरसेक्ट कर रही है AB साइड। जैसे ऐसे ये दो साइड्स पैरेलल होगी, BC एंड DA आर पैरेलल। रीजन मैं लिख रहा हूँ, बिकॉज BC parallel DA and AB intersect them। और ये जो एंगल्स हैं these are pair of interior angle on one side of the transversal, on the same side of the transversal। Sum of anterior angle on the same side of the transversal। तो ये ट्रांसवर्सल बन गई और ये दो पैरेलल साइड्स होगी, यानी ए बी तो बन गई ट्रांसवर्सल, तो ये पैरेलल साइड होगी और ये ट्रांसवर्सल होगी। तो इसलिए दीज आर द एंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो उनका जो जोड़ होता है वो 180 डिग्री होता है। सो एंगल बी प्लस ए बराबर है 180। सो लेकिन इससे नीचे अभी अपने पहले प्रूव कहते हैं, बट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, प्रूव्ड। देयरफॉर एंगल बी plus angle B बराबर 180 डिग्री। सो ट्वाइस ऑफ एंगल B 180, सो एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो जब एंगल B 90 का हो गया तो एंगल A आल्सो 90 डिग्री। सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B
इक्वल टू 90 डिग्री। सो बोथ एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री ईच। और क्योंकि B जो है वो एंगल D के बराबर है, एंगल A C के बराबर है, बट एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। देयरफॉर so angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D, each is equal to 90 डिग्री। तो अब इस क्वाड्रिलेटरल में अब ये एंगल A बराबर एंगल C क्यों है? क्योंकि एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। सो एंगल A B C D ईच इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसलिए क्या हो गया कि क्वाड्रिलेटरल A B C D दिस इज ए पैरेललोग्राम as well as it is a rectangles. So therefore parallelogram ABCD is a rectangle, hence proved. The next question. The next question is, show that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angle, then it is a rhombus. अब given quadrilateral ABCD, so in quadrilateral ABCD diagonals AC and BD bisect each other at 90 डिग्री। अब प्रूव करना है। टू प्रूव, ये था गिवन। टू प्रूव quadrilateral ABCD is a rhombus. अब रोम्बस में क्या होता है कि हमें इसको प्रूव करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमें रोम्बस प्रूव करना है। इसके लिए फिर क्या होता है, रोम्बस की चारों साइड्स जो हैं बराबर होती हैं, नंबर 1। उसके दोनों डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, नंबर 2। उस दोनों डायगोनल्स एक दूसरे के राइट बाइसेक्टर होते हैं, नंबर 3। और अपोजिट एंगल जो है वो बराबर होते हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। तो इसमें कुछ चीज़ें गिवन में भी हैं कि जो डायगोनल्स हैं दे आर राइट बाइसेक्टर, डायगोनल्स आर राइट बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। अब हमें सिर्फ साइड्स को अगर हम बराबर प्रूव कर देते हैं तो ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, देन इट विल बी प्रूव्ड एज अ rhombus. अब हम 2 ट्राइंगल्स लेते हैं, ट्राइंगल्स नंबर 1, नंबर 2। दिस triangle opposite to each other. So in triangle AOB and triangle DOC, so AOB और DOC ये 2 ट्राइंगल लिए, मैंने मार्क किया 1 और 2। अब उसमें क्या है कि जो साइड्स हैं ट्राइंगल, साइड्स AO बराबर है साइड OC। ये जो साइड है इस ट्राइंगल की इस साइड के बराबर है। वाई? क्योंकि ये बाइसेक्टर है एक दूसरे के, तो ये बराबर है, बाइसेक्टर है दोनों डायगोनल्स। तो ये एक तरह से गिवन में आ गया। सो गिवन। अब यहाँ पर जो एंगल है सो एंगल AOB बराबर है एंगल DOC। तो एक दूसरे के वैसे वर्टिकली अपोजिट भी हैं और वैसे भी 90 डिग्री के बराबर है। तो ईच इक्वल टू 90 डिग्री।
हम इसके लिए वर्टिकली अपोजिट भी लिख सकते हैं क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल भी हैं, दे आर इक्वल। एंड द साइड, वन साइड वी हैव टेकन, अदर साइड इज ये वाली। तो साइड ओ बी बराबर साइड ओ डी, ये भी गिवन क्योंकि बाइसेक्टर है ये। देयरफॉर ट्राइंगल अब एस ए एस क्राइटेरिया के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द बाई एस ए एस क्राइटेरिया, so triangles AOB congruent triangle DOC by S is corrected। तो इससे क्या होगा कि जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है वो बराबर हो जाएंगे। तो साइड, तो ये जो साइड है इस साइड के बराबर आएगी। देयरफॉर साइड AB बराबर हो जाएगी साइड DC। CPCT अब हम ट्राइंगल लेते हैं, ये वाली दो, फर्स्ट और थर्ड। अब यहाँ हम इसको मार्क कर देते हैं 1। सो इन ट्राइंगल AOB and triangle BOC, ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 3। सो इसमें जो साइड है, साइड AOB साइड है AO, ये वाली, ये साइड AO ऑफ दिस ट्रायंगल इक्वल टू साइड OC गिवन। सो एंगल, अब इसमें ये जो एंगल है, एंगल AOB इक्वल एंगल BOC each इक्वल टू 90 डिग्री। साइड OB इक्वल टू साइड OB, कॉमन साइड। तो इसलिए ट्राइंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। सो ऑन द बेसिस ऑफ अगेन साइड एंगल साइड, सो बाय SAS criteria of congruency, so triangles AOB congruent triangle BOC, तब ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी। 1 और 3 भी प्रूव, 1 और 2 पहले प्रूव हो गई है और 1 और 3 जो है वो प्रूव की है। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर साइड AB बराबर हो जाएगी साइड BC। तो ये हो गया 2। CPCT इसी तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। अगर हम ट्रायंगल 3 और 4 को लेते हैं तो साइड जो BC है वो बराबर हो जाएगी साइड, सिमिलरली we can prove the side BC बराबर साइड DA। इसको मार्क कर लेते हैं नंबर 3, क्योंकि जब इसको हम ट्रायंगल्स को लेंगे तो उसी तरीके से जैसे हमने 1 और 2 को प्रूव किया था कॉन्ग्रुएंट, ऐसे 3, 4 भी कैन बी प्रूव्ड कि ये साइड जो है इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये एंगल वर्टिकली अपोजिट। तो triangles are congruent, again the BC will be equal to DA। so from 1, 2 and 3, so 1 में हमने लिखा था कि AB बराबर DC। so from 1, 2 and 3, so AB, साइड AB बराबर है साइड BC, बराबर है साइड DC और बराबर है साइड DA।
means all the four sides are, all the four sides of a quadrilateral ABCD are equal and the diagonals are right bisector of each other. तो इसलिए ये जो प्रॉपर्टी है ये सेटिस्फाई करती हैं सारी प्रॉपर्टीज रोम्बस के लिए. सो देयरफॉर सो quadrilateral ABCD is a rhombus, hence proved. Next question. The next question is, show that the diagonals of the square are equal and bisect each other at right angle. तो ये फिगर जो बना हुआ है एक स्क्वायर है. ABCD is a square. क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए स्क्वायर. तो ये यहाँ उसके बाद क्या है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. ये तो प्रॉपर्टी में आता है स्क्वायर की कि स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन साथ में हमें ये प्रूव करना है कि वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं. इट्स डायगोनल्स एक तो हमें प्रूव करना है कि डायगोनल दोनों बराबर होते हैं और वो राइट एंगल पर बाइसेक्ट करें. तो डायगोनल AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O. टू प्रूव डायगोनल AC बराबर है डायगोनल BD. तो एक चीज़ तो ये प्रूव करनी है कि डायगोनल बराबर हैं दोनों. नंबर 2 ये प्रूव करना है कि वो एक दूसरे के राइट बाइसेक्टर हैं, यानी ये जो एंगल है सो एंगल AOB. सेकेंडली प्रूव करना है एंगल AOB बराबर एंगल BOC बराबर एंगल COD बराबर एंगल AOD इज 90 डिग्री, यानी ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं. अब हम ये ट्रायंगल लेते हैं, जैसे ट्रायंगल ये वाली ट्रायंगल ABC और ये दूसरी ट्रायंगल है ट्रायंगल ABD. सो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, अब इसमें जो साइड है AB होगी साइड AB कॉमन साइड, और ये जो एंगल है सो एंगल ABC इक्वल टू एंगल BAD ईच इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर मेंशन है क्वेश्चन में कि एक स्क्वायर है तो स्क्वायर का हर एंगल जो है चारों एंगल जो है 90 डिग्री के होते हैं. सो यानी ये भी एक तरह का गिवन है. तो ये साइड हम ले चुके हैं, एंगल ले लिया. अब उसके बाद ये साइड, तो साइड BC बराबर साइड DA, साइड ऑफ द स्क्वायर्स, क्योंकि ABCD एक स्क्वायर है इसकी चारों साइड बराबर होती हैं तो इसलिए साइड ऑफ द स्क्वायर्स दे आर इक्वल. तो देयरफॉर ट्रायंगल, so on the basis of SAS congruency, तो ट्रायंगल ABC and congruent triangle
ABD। अब इसलिए तो उसकी ये जो साइड होगी AC बराबर होगा BD। देयरफॉर तो साइड AC बराबर आ जाएगी साइड BD CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। और जो पहला पार्ट जो हमें प्रूव करना था AC बराबर BD, वो फर्स्ट पार्ट जो है वो फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड। अब रह गया है इन एंगल्स को बराबर प्रूव करना। अब ये ट्रायंगल मैं इस पे मार्क कर रहा हूँ, ट्रायंगल 1 यानी AOB ट्रायंगल, और दूसरी ट्रायंगल हो जाएगी ये BOC। सो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC, अब इसमें जो OB साइड है, सो पहले तो AO साइड AO बराबर है साइड OC। OC साइड ये गिवन है क्योंकि ये लिखा है दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, सो ये हो गया गिवन। तो उसके बाद ये साइड AB बराबर है साइड BC साइड ऑफ स्क्वायर्स, साइड ऑफ स्क्वायर। और थर्ड साइड OB जो है साइड OB बराबर हो जाएगी साइड OB, कॉमन साइड। तो ये साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, और ये थर्ड साइड बीच वाली बराबर। सो ऑन द बेसिस ऑफ SSS, सो बाई SSS क्राइटेरिया theory of congruency, so triangle AOB congruent triangle BOC। तो इससे क्या होगा कि ये जो एंगल है ये बराबर हो जाएंगे। तो एंगल AOB बराबर एंगल BOC, CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। लेकिन इन दोनों का जो जोड़ है, बट एंगल AOB प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। तो इसलिए एंगल AOB प्लस एंगल AOB बराबर 180। सो ट्वाइस ऑफ एंगल AOB बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। सो एंगल AOB बराबर आ गया 180 डिवाइड बाई 2, दैट इज 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, तो ये भी 90 का। सो एंगल BOC बराबर 90 डिग्री। तो एंगल AOB एंड एंगल BOC बोथ आर ऑफ 90 डिग्री ईच। तो जब ये 90 के हैं तो इसी तरीके से हम इनको भी प्रूव कर सकते हैं कि ये एंगल भी 90 डिग्री के ही हैं। सो सिमिलरली वी कैन प्रूव सो एंगल AOD बराबर एंगल DOC ईच इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरीके से तो हमने
इसमें प्रूव करना था। सो देयरफॉर एंगल AOB बराबर एंगल BOC बराबर एंगल AOD बराबर एंगल DOC इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो देयरफॉर यही हमें इसमें प्रूव करने के लिए कहा। सो सेकंड पार्ट आल्सो प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। फर्स्ट पार्ट पहले प्रूव कर दिया था, डायगोनल्स बराबर हैं और इसका जो हर एंगल है वो 90 डिग्री का, जहाँ पर वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। सो दैट वाज टू बी प्रूव्ड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज diagonal AC of a parallelogram ABCD bisect angle A. Show that it bisects angle C also. Number 2, ABCD is a rhombus. गिवन में है कि ये जो ABCD एक पैरेललोग्राम है, उसमें ये जो डायगोनल है AC इस एंगल A को बाइसेक्ट करता है, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो डायगोनल है AC इसको तो बाइसेक्ट कर ही रहा है, एंगल C को भी बाइसेक्ट करेगा, यानी एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये भी हमें प्रूव करना है, एक पार्ट। और दूसरा पार्ट करना प्रूव कि ABCD जो पैरेललोग्राम है वो एक रोम्बस भी है। सो गिवन quadrilateral ABCD is a parallelogram in which diagonal AC bisect angle A. To prove, first part, AC bisects angle C. Number 2, quadrilateral ABCD यानी जो पैरेललोग्राम है is a rhombus. Proof, अब देखिए हमें दिया गया है कि एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। सो AB पैरेलल टू DC, BC पैरेलल टू DA। नंबर 2, पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं, अपोजिट साइड्स बराबर होती है, अपोजिट साइड बराबर, अपोजिट एंगल बराबर, और जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल भी होती है। So since quadrilateral ABCD is a parallelogram, therefore side AB parallel DC and AC intersect them. यानी एक तरह की ये ट्रांसवर्सल होगी, तो इसलिए एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, अल्टरनेट एंगल्स। एंगल 1 is equal to angle 4, again alternate angle, but angle 1 is equal to angle 2 given, therefore angle 3 is equal to angle 4। तो इसलिए जो AC है, therefore AC bisects angle C also। सो ये एक पार्ट जो है हमने प्रूव कर दिया, सो हैज़ प्रूव। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो प्रूव हो गया। अब हमें प्रूव करना है कि साइड AB BC DA आपस में सारी चारों साइडें बराबर हैं।
अब इस ट्राइंगल में अभी हमने प्रूव किया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, लेकिन ये अपोजिट एंगल भी है, इसलिए एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 2 के, तो थाई 3, 4 बराबर है एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल। नाउ एंगल 1 is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4, but angle A is equal to angle C. So half of angle A is equal to half of angle, so half of angle A is equal to half of angle C. Means angle 1 is equal to angle 2 is equal to angle 3 is equal to angle 4. So all fours are equal. अब हम इस ट्रायंगल में लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, प्रूव्ड। देयरफॉर साइड ए बी बराबर हो जाएगा साइड बी सी, लेकिन बी सी किसके बराबर है? ए डी के, और ए बी किसके बराबर है? सी डी के। अब हम इस ट्रायंगल भी लेते हैं, सिमिलरली इन ट्रायंगल ए डी सी, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, देयरफॉर साइड ए डी बराबर हो जाएगी साइड डी सी। तो साइड अपोजिट द इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो इसलिए, लेकिन बी सी बराबर है डी ए, अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, बट बी सी बराबर है डी ए एंड ए बी बराबर है डी सी। सो इसको अगर हम कंपेयर करें 1, 2, 3 एंड 4 को अगर हम कंपेयर करें बाय कंपेयरिंग 1, 2, 3 एंड 4, सो बाय कंपेयरिंग ऑल दिस, सो देयरफॉर साइड ए बी बराबर है साइड बी सी, साइड बराबर है साइड डी सी, और बराबर है साइड ए डी। सो ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ये पैरेललोग्राम तो पहले से ही है क्वेश्चन में दी हुई, और साइडें इसकी चारों बराबर हैं, तो इसलिए तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल जो कि पैरेललोग्राम हो और उसके चारों साइड बराबर होती हैं तो वो रोम्बस होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई हैव गिवन यू solution for some of the question from this exercise, as well as initially I have given some introduction regarding the quadrilaterals. So go through the video carefully and try to understand the video, और उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।